Hello candidates and welcome to Government Crackers. So here in this session we'll be discussing top 50 MCQs for the month of August, current affairs ke covering all the sectors, and these current affairs make sure they will definitely have very high amount of chances to come into your examination because बहुत ही selective हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इन्हें जो है एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है आपके करंट अफेयर्स के सेगमेंट में से. सो डू नॉट मिस दिस करंट अफेयर्स. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन विद द ऑप्शंस. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि न्यूज में क्यों थे या कुछ अगर इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स कुछ आए होंगे न्यूज में तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी. फैक्ट्स मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी. सो डू नॉट मिस दिस सेशन एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस with this session. Also, you are knowing that there have been several videos which have been released by Government Crackers. We're trying to cover up the course before your examination is there. So you just can subscribe to the YouTube channel of Government Crackers. And for the course related stuff, you will get extensive amount of course material, including your previous year papers with the FCAT material. So for that, you can visit to www.governmentcrackers.com where you can avail the complete course within 24 hours after the payment. Everything you will be getting on your email ID. All right, and all those who are going for technical branches, they can avail the EKT material also, which is available on the website of governmentcrackers.com. all right, so let's discuss the questions which have very high probability to come into the examination. एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So the first question which come here is, which public sector unit has partnered with IIT Kanpur for training and research of smart grid technology? एक public sector unit है जिसने IIT कानपुर के साथ collaborate करा है for training and research of किसके smart grid technology. So here your right answer is Power Finance Corporation. Now India's leading NBFC and public sector unit which is under Ministry of Power Finance Corporation, उसने पार्टनर किया है IIT कानपुर के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has approved a law that gives more power to regulate social media content? अभी रिसेंटली एक कंट्री ने दिया है, अप्रूव करा है लॉ को, एंड दैट द नेम ऑफ द कंट्री इज टर्की. इसमें एक नया लेजिस्लेशन पास हुआ था पार्लियामेंट की टर्की में, जहां पे अथॉरिटीज को ज्यादा पावर दे दी गई है टू रेगुलेट content on the social media. Next question, which international bloc has imposed its first ever sanctions over cyber attack on organization of Russia, China and North Korea? So here your option is European Union. European Union ने first ever sanction जो है अप्रूव करा है over the cyber attacks on spies and firms of Russia, China and North Korea. इसमें हुआ क्या था, आपके 6 people into 3 groups इनको हिट किया गया था sanctions में, which include GRU military intelligence of Russia. ठीक है, इन पे ब्लेम लगा था ransomware के लिए और उसके बाद इन्होंने इसे फर्स्ट एवर सैंक्शन इन 3 कंट्रीज पे लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which global firm became the world's most valuable publicly listed company after surpassing Saudi Aramco? So here Apple ने सरपास किया है. राइट आंसर इज Apple जो कि मल्टीनेशनल पेट्रोलियम कंपनी है, Saudi Aramco, to become the world's most valuable publicly listed company. Next question, which major technology company launched the second phase of More Together campaign in India? So ये More Together campaign recently किसने लॉन्च किया है? Facebook ने लॉन्च किया है, which is in the second phase of its consumer marketing in India. जो इसका फर्स्ट फेज था आपको पता था मार्च 2020 में रोल आउट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, where is All India Institute of Ayurveda located? So it is located in New Delhi, which is basically based on the research for the medicines of Ayurveda under Ministry of Ayush. Next question,
who is said to become the first non-white person to feature on a British coin? Now this has marked the history, so it is Mahatma Gandhi. The United Kingdom has basically set the imprint image of Mahatma Gandhi. It is a new set of coins जो particularly celebrate करेगा for the efforts जो contribute करा है महात्मा गांधी ने against discrimination. Alright, so it's a very big achievement. Next question. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has launched a program for अगरबत्ती artisans under which scheme? तो वहां पे आपको स्कीम का नाम बताना है. So it is basically ग्रामोद्योग विकास योजना जो लॉन्च किया है MSME ने रिसेंटली अप्रूव करा है. अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक्स जो आपके बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर इसे इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट इज इंदिरा रसोई योजना एक वेलफेयर स्कीम है. कौन से इंडियन स्टेट में ये योजना चल रही है? सो द राइट आंसर इज राजस्थान. राजस्थान ने इस योजना को लॉन्च करा था अगस्त 20 में. इस स्कीम के अंडर बेसिकली जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो नीडी या पुअर को दिया जाता है, विच कॉस्ट अराउंड 8 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो संस्कृत दिवस है, व्हेन इज संस्कृत दिवस 2020 सेलिब्रेटेड? सो संस्कृत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of August, विच इज विश्व संस्कृत दिनम, जिससे कहते हैं, जो कि फुल मून के दिन होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रवण के महीने में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम launched by health minister to promote scientific temper among the school students? तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? सो इट वॉज विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जिसे लॉन्च किया था यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन ने नेशनल लेवल पे. ठीक है. इस इनिशिएटिव के थ्रू बेसिकली हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट कर रहे हैं इन स्कूल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है. यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हु सेड टू बिकम द फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू फीचर ऑन ब्रिटिश कॉइन? सो अब आपको नाम पता होगा, महात्मा गांधी, एंड रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने लॉन्च करा था. अगेन दिस क्वेश्चन इज बीन रिपीटेड, सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये आपका हो गया ग्रामोद्योग विकास योजना, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे ऑपरेटेड द फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन? सो दिस इज बेसिकली जोन पूछा है, सो इट इज नदरन रेलवे. क्या है ये व्यापार माला? ये आपकी ट्रेन चली थी दिल्ली टू जिरानिया इन त्रिपुरा, जिसमें 46 वैगन्स and 34 of them were loaded with wheat and remaining with rice and pulses. यानी टोटल 46 वैगन्स गए थे, जिसमें 34 जो थे वो लोडेड थे wheat and remaining with rice and pulses. इसके थ्रू रेलवे ने अर्न करा मोर देन 94 लाख रुपीज थ्रू दिस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज IPL 2020 एडिशन गोइंग टू बी हेल्थ? तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स से अपडेटेड हैं तो यू शुड बी नोइंग दिस. सो इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. गवर्नमेंट ने प्रोविजनली परमिशन दे दी है कि हम IPL को शेड्यूल कर सकते हैं, बिकॉज पैंडेमिक था, कोविड-19 का ब्रेक था, जो आउटब्रेक था वो खत्म हुआ और फाइनली इसको UAE ने अलाउ किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian state has signed an MOU with the leading MNCs such as ITC, PNG and Hindustan Unilever for women empowerment? कौन से स्टेट ने साइन करा है? सो इट इज आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली एक MOU साइन करा है लीडिंग MNCs के साथ, जो बेसिकली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करेगी वुमेन्स को इन द रूरल एरियाज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 ईयर्स. ठीक है. और इस स्कीम को एक नाम भी दिया गया है YSR चेयुथा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which telecom company of India has partnered with Amazon Web Services to provide cloud solutions to businesses? So it is none other than Airtel, जो कि एक लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर है, और इसने जो है पार्टनर किया है Amazon Web Services के साथ कि वो क्लाउड सॉल्यूशंस टू बिजनेसेस प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which global organization has estimated that about 24 million additional children may drop out of school? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे जिसने एस्टिमेट किया है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक अराउंड 24 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन जो है वो ड्रॉप आउट ले लेंगे स्कूल से. तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज यूनेस्को विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पे एंड अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने ये एस्टिमेट करा है. नेक्स्ट, India extended a line of credit of $18 million to which country to expand fishing facilities? So it is Maldives, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्सटेंड करा है एक लाइन ऑफ क्रेडिट एंड इसमें एक्सपैंड कर रहे हैं हम फिशिंग फैसिलिटीज को एट मालदीव्स इंडस्ट्रियल LOC. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the chairperson of expert committee of debt resolution constituted by Reserve Bank of India? So it is KV Kamath जो कि constitute करते हैं एक expert group को on debt resolution under the chairmanship of KV Kamath. ये कमेटी बेसिकली RBI को recommend करेगी कि किस तरह से उन्हें फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे काम करना है, एक बेंचमार्क सेट करना है हर सेक्टर के लिए, ताकि जो डेप्थ आया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, सो हाउ वन कैन गेट आउट ऑफ इट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग क्लीनिनेस वीक फ्रॉम August 10 टू मार्क द इंडिपेंडेंस डे. सो दिस इज योर इंडियन रेलवेज जो आपका स्वच्छता दिवस में कहूँगी वो मना रही है, स्वच्छता का पूरा वीक मना रही है टू कॉमरेट इंडिपेंडेंस डे. इस वीक में स्पेशल क्लीनिनेस कैंपेन लॉन्च किए गए हैं रेलवे के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर? सो हियर योर राइट आंसर इज 10 अगस्त को सेलिब्रेट होता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ताकि हम एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सके फॉसिल फ्यूल्स को. ऑल्सो ताकि एक इनिशिएटिव बने जो गवर्नमेंट करना चाह रहा है बायोफ्यूल सेक्टर की तरफ, वो एक इनिशिएटिव भी बने जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी तरफ, ये एक स्मॉल स्टेप है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? तो आपको पता है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सो उसके चलते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक ऐप लॉन्च किया है. उस ऐप का नाम है सुरक्षा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है इस पोर्टल को, और ये आपका रियल टाइम डेटा कलेक्शन करेगा ऑन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has signed an MOU with US based IT firm Boston Group? तो ये US based कंपनी है, किसी स्टेट ने साइन करा है एक MOU. So the state's name is आंध्र प्रदेश. Next question, which organization in association with Armed Force Medical College has released a guide named Building Positive Health in 9 Simple Steps? So there is an organization जिसने collaborate करा है AFMC के साथ, which is there in Pune. So this is Office of Principal Scientific Advisor Government of India in association with AMC. उन्होंने release करा है How to Build Positive Health in 9 Simple Steps. नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन एक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम है विद टेक्नोलॉजी कंपनी टू लॉन्च स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0. तो ये कौन सी कंपनी है? सो द नेम ऑफ द कंपनी इज डेल टेक्नोलॉजीज के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है एंड दिस इज द फर्स्ट वर्जन. इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो लॉन्च हो चुका था 2019 में, और इसका ये सेकेंड सीरीज 2.0 जो है ये अब अगस्त में लॉन्च हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज? सो एक ये रिपोर्ट रिलीज हुई है. सो हियर योर राइट आंसर इज वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, विच इज एन इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. इसने जो है एक रिपोर्ट रिलीज करी है नेम्ड एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज. ये थर्ड एडिशन है रिपोर्ट का जो इंडिया में रिलीज हुआ है एंड विच
says that India has second highest number of elephants which are used in the tourism sector in Asia. Next question. Which documentary film was screened by film division to mark the celebration of इंडिपेंडेंस डे? कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो रिलीज हुई थी? सो इट वाज इंडिया विंस फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट इंडिया. सो जो हमारा 74th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन था 15 अगस्त 2020 को, फिल्म डिवीजन ने 2 डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करी. वन वाज इंडिया विंस फ्रीडम एंड सेकेंड इज इंडिया independent. So apart from these 2 films, 14 selected films on independence movement ये showcase हुई थी थ्रू ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कंप्लीट 14 to 15 days तक, which was from 7th August to 21st August. Next, which is the first neighboring country with which India has made the air bubble agreement? तो air bubble काफी न्यूज में है. तो कंट्री का नाम है यहाँ पे मालदीव्स. तो मालदीव्स जो फर्स्ट नेबरिंग कंट्री है उसके साथ इंडिया ने अपना ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन सर्विसेज शुरू किया है अंडर एयर बबल एग्रीमेंट. सो एयर बबल होता है बेसिकली कि क्योंकि पैंडेमिक है तो आप जल्दी से इंटरनेशनल ट्रेड्स को अवॉइड नहीं कर रहे हो, तो यूजुअली एयर बबल इज अ सिचुएशन जहां पे हम नियर बाय कंपनीज, नियर बाय कंट्रीज के साथ जो है हम अपने ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं. और इसमें कोरोना से बचने के लिए देयर हैव बीन स्पेशल फीचर, स्पेशल प्रोविजंस जिसमें जो लोग हैं वो क्लब हो जा रहे हैं अगर उन्हें पैंडेमिक हुआ है. सो बेटर देन ट्रेसिंग, दे आर क्लबिंग इनटू ग्रुप्स एंड दैट इज व्हाई द नेम एयर बबल इज बीन गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been posthumously awarded Kirti Chakra by President of India? So it is Abdul Rashid Kalas. इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 84th गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर डिफेंस पर्सनल्स में अब्दुल राशिद कलास जो कि हेड कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, उन्हें कीर्ति चक्र दिया है. और कीर्ति चक्र आपको पता है दिस इज द 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम. और शौर्य चक्र जो है वो 9 आर्मी पर्सनल्स को मिला है इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल एंड हवलदार आलोक कुमार दुबे और इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विशाख नायर को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन पे आते हैं. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट फॉर द FY 2019 and 20 which seafood was the largest produced to be exported from India? So it is shrimp. फ्रोजन श्रिम्प जो है ये मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हुआ था अमंग द सी फूड फॉलोड बाय फ्रोजन फिश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which institution is to set up a new umbrella entity for retail payments? So it is Reserve Bank of India ने एक framework रिलीज किया है for setting up of new umbrella entity for retail payments. Next question. मडवाड़ी रेलवे स्टेशन को रीनेम कर दिया गया एज बनारस विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. सो मडवाड़ी आपको पता है बनारस अगर आप नाम दिया गया है तो बनारस ऑब्वियसली इट इज देयर इन उत्तर प्रदेश. सो इसको रीनेम करके मडवाड़ी बनारस से थोड़ी ही दूर पे लोकेटेड है, इंटरसिटी रेलवे स्टेशन आप कह सकते हैं, उसको रीनेम करके बनारस नाम दे दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल्स बैंक ऑफ चाइना has acquired a stake in which Indian private bank? So it is ICICI बैंक में People's Bank of China ने acquire करा है stake. Next, which organization is deploying Ninja unmanned aerial vehicles for surveillance? So it is Railway Protection Force ने procure करा है Ninja unmanned aerial vehicles for surveillance operations. Next question. Ibrahim Boubacar Keita, who recently resigned, was the president of which country? So he was the president of Mali, जिन्होंने recently step down कराया है after a prevalent military rebellion हुआ उनकी country में और इसकी वजह से उन्हें जो है वो resign करना पड़ा. Next question. Which city won the cleanest city award in स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? So आपको पता है इंदौर
ने जो है टॉप किया सिटीज़ में, और ये कॉन्जिक्यूटिवली 4 ईयर से इंदौर जो है टॉप करता आ रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बताऊं तो गुजरात का जो सूरत है उसने 2nd पोजीशन, वाइल महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है वो 3rd पोजीशन, एंड 5th पोजीशन पे आपके आए हैं। ये 5th सर्वे है बेसिकली इस पूरे स्वच्छ सर्वेक्षण का। नेक्स्ट इज who represented India in 2020 round table of ASEAN India network of think tanks। तो एस जयशंकर जो कि मिनिस्टर ऑफ यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट करा इंडिया को राउंड टेबल एशियन इंडिया नेटवर्क थिंक टैंक्स में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव दैट इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच 3 countries? So it is related to India, Japan and Australia. So in order to reduce dependency on China, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा relations अच्छे नहीं हैं इंडिया चाइना के बीच में, so we are trying to reduce dependency on China। तो ये जो 3 countries हैं, namely India, Japan and Australia, इन्होंने एक discussion, एक trilateral supply chain initiative लिया so that इनके जो countries की dependency है वो चाइना पे कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड? सो इट इज रितेश शुक्ला, और इन्होंने लॉन्च करा है होली ओन सब्सिडरी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी विद विच कंट्री एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये भी हाईलाइट किया गया है। सो द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज उज्बेकिस्तान, जिसके साथ रिसेंटली इंडिया ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। ये वर्चुअल मीटिंग के थ्रू वर्चुअल एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institution is associated with शिव नादर यूनिवर्सिटी, और उन्होंने डेवलप करा एक टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस लिथियम सल्फर बैटरीज। सो द ऑर्गेनाइजेशन इज IIT बॉम्बे ने क्लेम करा है दैट उन्होंने डेवलप करा है एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली लिथियम सल्फर बैटरी विद ऑर्गेनाइजेशन विद शिव नादर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, Which company has recently conferred with the Global Water Awards? तो Global Water Awards मिले हैं आपको वाटेक वाबक, जो कि कन्फर किया गया था ग्लोबल वाटर अवार्ड के लिए। इट इज एन वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी एंड इट बेसिकली थ्रू विद द हेल्प ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इसका जो प्लांट है वो 45 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को ये जो है ये क्लीन अप करता है। Next, which football club has won UEFA Championship League 2020? So it is Bayern Munich, जिसने वॉन किया है। जर्मनी बेस्ड फुटबॉलर हैं आपके, और इन्होंने इस लीग को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is to host State Dragonfly Festival in association with WWF? ठीक है, तो इट इज केरला जो है, दिस इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जिसका नाम दिया गया था थिम्बू महोत्सव 2020। सो प्लीज इसको याद रखिएगा, थिम्बू महोत्सव। नेक्स्ट 46, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? तो ये जो रिपोर्ट वाली फाइल रिलीज हुई थी, ये मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। द नेम ऑफ द स्टेट इज गुजरात, जिसने रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन्होंने 4 पैरामीटर्स पे स्कोर किया था, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जिसपे गुजरात ने जो है वो टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च फॉर द फर्स्ट रिटेल इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग्स के लिए इंश्योरेंस कवर दिया था? सो इट इज बजाज आलियांज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has recently extended the AFSPA यानी Armed Force Special Power Act for a period of 6 months? तो it is असम। तो असम ने एक्सटेंड करा था आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, 6 और मंथ्स के लिए इसे बढ़ा दिया गया था फ्रॉम August 28।
क्योंकि असम को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था ड्यू टू वेरियस इंसर्जेंसी अटैक्स जो वहाँ पे हो रहे थे नियर बाय फोर्सेस के, तो उसकी वजह से और 6 मंथ्स को इसको आगे बढ़ा दिया गया उस एक्ट को। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच एजेंसी, तो कौन सी एजेंसी ने इस ड्राफ्ट को रिलीज करा है? सो इट इज रिलीज्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। सो आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इस ड्राफ्ट को रिलीज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस मंथ इज who is the first bowler to take 500 wickets in T20 tournaments? And the name is Duran Bravo, जो कि फर्स्ट फुटबॉलर बन गए हैं इन द वर्ल्ड टू टेक 500 wickets in T20. He is 36-year-old former वेस्ट इंडीज कैप्टन जिन्होंने ये अचीव करा है ड्यूरिंग द CPL मैच जो कि था बिटवीन नाइट राइडर्स एंड सेंट ल्यूसियासा जॉक्स, ठीक है। सो बहुत सारे T20 उन्होंने खेले और फाइनली ही इज द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट बॉलर इन दिस वर्ल्ड टू अचीव एंड टेक 500 wickets. All right, so this was the complete current affairs. I've tried my best to explain you. The same series will be getting for any sort of study material. As I said, the time is less. You need compiled material and precise material which you can avail at www.governmentcrackers.com at a very nominal charge. So best of luck guys, start working hard, do not waste your time, stay focused and definitely you'll clear the examination. I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.